Hello, good evening. Good evening, Good sir. evening. Hello, Sneha. So, today in the live session, we have with us Dr. Parvinder Kumar Singh, who is a homeopathic physician currently working in ESICH, Ministry of Health and Labor. Along with being a homeopathic physician and doctor, he is an entrepreneur who started his career with multiple ventures investing not only in homeopathy but in the advancements of homeopathy and supporting students and practitioners to teach entrepreneurship. So, for the live session today, we have the topic decoding details, the initial days of clinical practice. So, we want to welcome you, sir. I am Sneha Singh, Cultural Secretary of Nehru Homeopathic Medical College and Bijan Campus Ambassador at Bijan Pharmaceuticals. Hello, thank you. How's you doing, Sneha? I'm good, sir. Okay, let other people join. Yeah, I think people will join by this. So you are in final year, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so how's your life? College is going? So quite good by now, but started worrying about the topic today, the clinical setup. I thought so. Most of these students are worried about it, how they will start their clinic Huh. setup Yes, initially. sir. But it's good you are engaged in other activities too, like this. Yeah. It's good. My voice is clear, right? Yes, sir. Great. I think we should start, sir. Okay, we People can. will start joining. Okay, we can go. Hi, Roshni. Are you watching the live? Please share the link in the college group. We are already very short of time, so I think we should start. Yeah, we should. I have just 30 minutes for this session. So, yes, we I know. should start, I guess. Huh. I have my teachers also join over there. Dr. Neha Dubey ma'am is watching us. Okay, Dr. Neha Dubey, she is my batchmate. Oh, that's great. Let's start now. Let's start. Yes, sir. Okay. I think we should start now. Yes, sir. Yes, sir. 9-5 has been done, so people will start joining once they get the notification. Okay.
before everything we start with, I wanted to thank you for connecting with us and collaborating with us for this topic. Well, I have been seeing your content on Instagram, and knowing that such a great doctor is coming with us, and after connecting with you, then I got to know that you are an entrepreneur too. And for me, starting with the entrepreneurship in the field of homeopathy is a big thing. We as homeopaths, we learn about treating people and everything, but nobody tell us about that money or the thing we the earning bread and butter is essential. We can talk about like a noble profession and everything, but making money is important too. Important, important. Obviously, obviously. Actually, I am also very happy to share my experience with everyone. Like, I always wanted to share that one should also focus on making money. Hmm. Obviously, at the end of the day, you need butter, bread and butter on your table, and chicken also, and paneer also. So Yeah. I just want every homeopath should earn or must earn that much good amount of money. So I'm here just to share experience that what are the key things you should remember or you should practice in your daily life, which can help you grow financially. Well, I think people will come and join. We can start with it We now. can start your sessions. Like we were talking, you are talking about your initial days, how you get into this practice and everything. See, in my early days, first I explore corporate. So what's the culture there? And I learned a lot of things from there also. Like the one thing I would like to address that we should always work on our skills. This is what very important. अभी क्लिनिक खोलने से पहले भी मैंने देखा था कि मतलब अभी क्या है ना कि मेरे पास अभी कई सारे बच्चे फोन करते हैं कि अरे बॉस क्लिनिक खोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार, क्लिनिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है यार लोकेलिटी, आप कहाँ पे खोल रहे हो। सो ये जो चीज है ना कि अभी लोगों के मन में ये सब बड़ा रहता है कि यार हम किसी पॉश एरिया में क्लिनिक खोल लें या किसी सेमी अर्बन एरिया में क्लिनिक खोल लें, कहाँ पे ज्यादा चलेगा कहाँ पे नहीं चलेगा। बट जो चीज मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है और जो चीज मैंने अपने ऑब्वियसली सर्कल से भी पूछी है वो ये है कि यार क्लिनिक कहीं पे भी खोल लो, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए। अभी मैंने देखा है कि बहुत ही जैसे कुछ लोगों का है ना, बहुत ही क्राउडेड मार्केट में क्लिनिक्स खोल लेते हैं, अभी वहां पे पार्किंग स्पेस भी नहीं है, Hmm. इट्स नॉट दैट मच गुड। अभी पेशेंट आ रहा है और उसको थोड़ा सा हसल करना पड़ रहा है अपना कार पार्क करने के लिए, अपना स्कूटर पार्क करने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम उसके लिए ये एक अलग चैलेंज हो चुका है Hmm. कि यार अभी मैं अगर वहां जाऊंगा डॉक्टर साहब के यहाँ दिखाने तो मेरे को स्कूटर कहाँ पार्क करना पड़ेगा, Hmm. है ना। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे भी अगर कोई भी क्लिनिक खोलता है, ठीक है, वहां पे ये जरूर ध्यान में रखिए कि भाई पार्किंग स्पेस कितना है। अगर पार्किंग स्पेस नहीं है तो इट्स अ प्रॉब्लम। दूसरी Hmm. दूसरी चीज मुझे जो लगता है कि क्लिनिक में लोगों को ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि अभी मैंने देखा है कि एक ही चैम्बर बना लेते हैं, उसको बाइफरकेट नहीं करते हैं। एक ट्रेंड स्टाफ, मतलब वही है ना कि आप कैसे एक क्लिनिक में खुद को सुपीरियर बनाओगे, Hmm. Yeah. एक स्टाफ को अपने अंडर रख के, Hmm. राइट। Hmm. तो वो चीज बड़ी जरूरी है। लोग बाग अभी शुरू की इनिशियल प्रैक्टिस में इस चीज को नहीं बोलते, उनको लगता है कि अरे बिना स्टाफ के काम चल जाएगा, पेशेंट वॉक इन करेगा, हम ही उसे अटेंड कर लेंगे। और बट मैं ये बोलता हूँ कि भले आपकी जेब में एक भी रुपए नहीं बच रहा है उस क्लिनिक से अभी,
बट आपका जरूरी है कि आप एक स्टाफ को किसी भी सैलरी पे हायर करें और उसको एज अ इन्वेस्टमेंट लें। उसको ऐसा ना लें कि मैं वहां से कमाऊंगा वहां निकाल दूंगा, नहीं, उसका रोड मैप आप पहले तैयार कर लें कि हाँ भाई 5 महीने के लिए, 4 महीने के लिए मुझे एक स्टाफ की सैलरी भी उस क्लिनिक इन्वेस्टमेंट सेटअप में ऐड करके रखनी है। अगर आप 15,000, 18,000, 12,000 जो भी कर रहे हैं, तो वो 60,000, 50,000 रुपीज आपको एक अलग निकाल के रखना है उस स्टाफ की सैलरी के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये चीज, और वो स्टाफ ऑब्वियसली ट्रेंड होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि हाउ टू डील पेशेंट। तो ये एक चीज जो है, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं फोकस करता हूँ कि स्टाफ तो क्लिनिक में जरूर होना चाहिए। हम्म। तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि में क्या कहते हैं, ये होता है कि आपके पास नॉलेज बहुत है। ठीक है। पहला पेशेंट आया, आपने उस नॉलेज को, मतलब मुझे एक फिजिशियन को शुरू में पिच करना पड़ता है खुद को हम्म। कि भाई मैं, मेरे पास है, मैं कर सकता हूँ, आई कैन ट्रीट यू वेल एंड आई एम। हम्म। मतलब सी मेरे को तो, मैं वही है ना, ये बहुत वैसी बात हो जाती है, बट मैं बोलता हूँ कि पेशेंट को ये फील कराओ कि आई एम द ओनली पर्सन ऑन दिस planet who can treat you. हाँ। So this is very important to make your patient feel that you are the only person who can treat him well. हम्म। और उस टाइम अपने नॉलेज को, मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं अभी भी इट्स बीन 7 years सिंस आई एम प्रैक्टिसिंग, बट स्टिल मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनको उनकी डिजीजेस एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ उनको एक्चुअली में है क्या हम्म। प्रॉब्लम। तो उससे एक उनको ये लगता है कि यार हाँ, हमारी बीमारी समझ ली गई है। ठीक है। तो इनिशियल डेज में ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट कम है, आप अच्छे से टाइम भी दे सकते हो, खाली बैठने से अच्छा है। ठीक है। हम्म। कि आप एक पेशेंट आ रहा है, उसको थोड़ा सा एंटरटेन कर दो, कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम्म। है ना। तो ये एक चीज मुझे बहुत की फैक्टर लगता है। चौथी चीज मुझे ऐसी लगती है कि शुरू शुरू में ना हम कभी भी अपना एक मैप नहीं बनाते। मैंने कई सारे प्रैक्टिशनर्स देखे हैं, उन्होंने, मेरे पास अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अभी तक, अभी 5 साल मेरा यहाँ पे इस वाले क्लिनिक को हो गया है, इन 5 साल का पूरा डेटा रखा हुआ है कि मैंने किस दिन कितने पैसे कमाए, उस महीने का कितना टोटल इनकम हुआ मेरा, हम्म। जिसमें से कितना मेरा मेडिसिन में चला गया, कितना मैंने स्टाफ को दे दिया, कितना मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल गया, कितना मेरा रेंट गया, और एट द एंड कितना बचा मेरे पास। हम्म। जो बेसिक बिजनेस प्रैक्टिस है वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सी, क्लिनिक, एक फिजिशियन होना एक अलग चीज है। ठीक है। आप बहुत अच्छे फिजिशियन हो सकते हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, बट अगर आपके अंदर एक बिजनेसमैन का माइंडसेट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव रखना कि हाँ, हमारे पास बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, बिजनेस माइंडसेट है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप फाइनेंशियली ग्रो कर सको। In today's time, a homeopath need to be thinking like a businessman too. अगर एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भाई क्या कर सकते हैं, आपको अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ भी साथ के साथ इम्प्रूव करना है। हाँ। राइट। हम हम्म। एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहां भी जज करेगा आपको। हम्म। ठीक है। तो भाई वहां पे अगर आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, और वो इन्वेस्ट करोगे कैसे, जब आपके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा, आपके पास पता होगा कि हाँ मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो 20,000 अपनी पर्सनल ग्रोथ में, पर्सनल स्किल डेवलपमेंट में खर्च कर सकता हूँ। हम्म। है हम्म। ना। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि शुरू शुरू में एक फिजिशियन का, तो देखो एक होम्योपैथ को तो बेसिकली, ठीक है, फिजिशियन की तो बात बाद में है, बट एक होम्योपैथ को ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ये ध्यान में रखें कि जब भी पेशेंट आ रहा है ना, ठीक है, तो वो पेशेंट उस पेशेंट के साथ कनेक्ट कर पाए, होम्योपैथ पेशेंट कनेक्टेड फील हो। है ना। हम्म। अभी ऐसा नहीं है कि पेशेंट कुछ बोल रहा है और आप आई कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हो उसकी बात सुनते हुए, हम्म। आपके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। हम्म। ये कम्युनिकेशन में ये चीज सीखना कि भाई पेशेंट जो बोल रहा है, उस वो अगर अपना कुछ भी पेन वाला पार्ट वो कर रहा है, तो हम्म। वो पेन उसके फेस पे नहीं, आपके फेस पे दिखना चाहिए। हम्म। तब जाके पेशेंट कनेक्टेड फील करता है, तब जाके पेशेंट को लगता है कि यार हाँ यार, डॉक्टर साहब ने मेरी बात समझ ली, इनको समझ में हाँ। आ रहा है मेरे दर्द कितना है ना। फिर हाँ।
उसके बाद होता है रिलेशन मेंटेन करना, राइट। हम्म एक चीज मैं जो हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ कि पेशेंट को याद करने की कोशिश करो। भाई जब हम्म ज्यादा पेशेंट हो जाते हैं, जब आपके पास ओपीडी होती है 40 पेशेंट की, 50 पेशेंट की, तो हो सकता है आपके पास फॉलोअप में जब पेशेंट 1 हफ्ते बाद आए या 15 दिन बाद आए तो आपको याद ना हो पेशेंट। हम्म तो वो प्रैक्टिस आपको शुरू से करनी है कि आपके पास जो भी पेशेंट आ रहा है एटलीस्ट उसको बाई फेस तो याद रखो। उसको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ अरे मुझे थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। और ये हम्म हर पेशेंट को फील कराना चाहिए एक डॉक्टर को कि भाई हम्म। मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो यस। दीज आर द की फैक्टर्स जो मैं अपने क्लिनिक पे ध्यान देता हूँ कि इन चीजों का बड़ा ध्यान रखूं, जिसकी हम्म वजह से अब हर डॉक्टर सारे पेशेंट तो सही कर नहीं सकता। हम्म। ये एक बिटर ट्रूथ है। कोई भी अगर ये बोलता है कि वो 20 पेशेंट देख रहा है, 20 में से 20 सही कर दे रहा है, तो मुझे तो लग रहा है कि वो भाई डॉक्टर नहीं है, बहुत। बट जब आप पेशेंट सही नहीं कर पा रहे हो तो हम्म पेशेंट तब भी आपके पास पेशेंट भेजे। और वो हम्म तभी पॉसिबल है जब आप उससे कनेक्ट रहोगे, हम्म जब आपने उससे एक पर्सनल लेवल पे टर्म्स बना लिए। वो ये जरूर कहेगा कि चलो ठीक है मुझे फायदा नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट उसको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे नहीं हो रहा, वो एक अलग केस है। बट डॉक्टर साहब इतना है कि वो उनको बाकी पेशेंट को फायदा होता है। हम्म। और सारा बिजनेस रेफरेंस से ही चलता है। मैंने हाँ। देखा है बहुत जस्ट डायल, मतलब नाम तो नहीं लेना चाहिए मुझे किसी का, बट एसईओ और दुनियादारी की चीजें कर लेते हैं लोग। बट मैंने जितना फील किया है कि जो वर्ड ऑफ माउथ से पेशेंट आता है, उसके अलावा पेशेंट जो टिकने वाला पेशेंट होता है, जिसपे आप सच में, जो आपके लिए वेट करेगा, जो आपको टाइम देगा, वो वर्ड ऑफ माउथ से आता है। ठीक है, अभी जैसे कुछ पेशेंट आते हैं 1 हफ्ते में आराम नहीं मिला है ना, वो आपको बताने आएंगे कि डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं मिला, क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ से आया, वो पेशेंट है, उसको किसी ने हम्म। बताया है कि मैं सही हो गया, तब आया हाँ वो। हाँ। तो पेशेंस रखेगा कि हाँ मैं भी सही हो जाऊंगा। लेकिन हम्म अगर कोई और किसी स्ट्रेटेजी से आता है, उसको आपको एंटरटेन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आप उसको फर्स्ट वीक में रिलीफ दे पा रहे हो तो ठीक, वरना वो कहीं और जंप कर जाएगा। हम्म और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि शुरू के दिनों में एक डॉक्टर को बहुत डिसिप्लिन में रहना चाहिए। डिसिप्लिन रिलेटेड टू टाइमिंग्स। अगर आपके क्लिनिक का टाइमिंग है 9 to 2, तो भाई आप उस टाइमिंग में वहां होने चाहिए क्लिनिक पे। हम्म ऐसा नहीं है कि आपका स्टाफ है और आपका स्टाफ, आपने स्टाफ को बोल के चले जाते हैं, मतलब कि अरे कोई पेशेंट आए तो कॉल कर देना, क्योंकि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे अभी तो 2-4 ही पेशेंट आ रहे हैं तो स्टाफ कॉल कर देगा मुझे। नहीं, हम्म डोंट डू दैट। भाई आप जब तक बैठेंगे नहीं क्लिनिक पे, तब तक पेशेंट कभी भी आता है। पेशेंट का कोई टाइम नहीं होता शुरू के दिनों में। मुझे हम्म याद है मैं जब शुरू में बैठता था तो मेरे को पूरा पूरा दिन हो जाता था, 2 पेशेंट 3 पेशेंट, 8 घंटे कहीं पे आप दे रहे हो और आपका प्रोडक्टिविटी सिर्फ 2 और 3 पेशेंट का है, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड फील होता है। ट्रू। ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो होता है, वो सबके साथ, सब उसी फेज से गुजरते हैं। हम्म मेरे से जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनको बोला कि बॉस पेशेंट नहीं आ रहे क्या करूं, उन्होंने मुझे बोला यार तू बस बैठ बैठ और जो पेशेंट आ रहा है उसको अच्छे से देख। हम्म तो यही स्ट्रेटेजी काम करती है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता। बाकी नॉलेज तो है ही, देखो नॉलेज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही। और नॉलेज हम्म ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से काम आती है, नॉलेज तो धीरे 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 सीखते रहते हैं। बट ये जो हम्म बिहेवियर है आपका, वो पहले पेशेंट से काम आता है हम्म ना। पेशेंट अभी सही हो नहीं पाया है, मेरे पास पहला पेशेंट आया, वो सही नहीं हुआ है अभी, उसको फायदा भी नहीं हुआ है, बट वो मेरे बिहेवियर की वजह से अपनी मम्मी को ले आएगा, अपनी सिस्टर को ले आएगा, अपने किसी कलीग को ले आएगा, है ट्रू। ना। तो जब आपके पास 10 पेशेंट होंगे तब आप 4 सही कर पाओगे, 20 होंगे तो 8 कर पाओगे, है हाँ। ना। बट वो 8 पेशेंट कोई नहीं पूछ रहा कि आपने 20 में से सही करें या 10 में से करें। तो शुरुआत में आपको पेशेंट की जरूरत होती है। आपको चाहिए कि जो शुरू के आपके पेशेंट्स हैं वो कैसे आएंगे। ठीक हम्म है, वो आएंगे अपने आप को पिच करके। जो भी पेशेंट आ रहा है अपने आप को पिच करो। एक पैम्पलेट्स लोग न्यूज़पेपर में डलवा देते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया भाई ये स्ट्रेटेजी क्या है, और शायद बहुत ही कम लोगों में काम करती है ये स्ट्रेटेजी। हम्म पैम्पलेट्स आप
हाथ से जो पेशेंट आ रहा है उसको दो, ठीक है, और उसको बोलो कि भाई ये बीमारियां हैं, और लोकल लैंग्वेज में। ऐसा नहीं है कि भाई आप किसी रूरल एरिया में बैठ रहे हो और वहां पे आपने इंग्लिश का पैम्पलेट उसको थमा दिया, किसी को समझ नहीं आने का, हाँ। है ना। जो लोकल लैंग्वेज है वहां की, उस लोकल लैंग्वेज में पैम्पलेट छपवाओ, और जो पेशेंट आ रहे हैं पहले दूसरे तीसरे, उनको बोलो कि अगर किसी को जरूरत हो तो ये पैम्पलेट दे देना, 2 और 3 पैम्पलेट। दिस इज हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट पैम्पलेट्स। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं जो मेरे लिए तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा काम करी हैं, और मैंने 2-3 जूनियर्स को बताया अपने, उनके लिए भी काफी अच्छा काम करा है इस टेक्निक में। हम्म। तो यही है। इफ देर एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क, आई एम हैप्पी टू Sir, आंसर। sir, I wanted to ask about the basic amenities. मतलब initially when we are starting with the clinic, तो एक थोड़ा financially भी इतना strong नहीं होता है. Either हाँ it is your parents or your internship money that you are going to use for the clinic setup. तो basic amenities, what is essential? यार देखो, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ कि यार एक होम्योपैथ को जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एक क्लिनिक के पूरे सेटअप में, एक तो लोकेशन पे करना चाहिए जहाँ पे अच्छा पार्किंग स्पेस हो, हम्म ठीक है, वो एक है इन्वेस्टमेंट का, ठीक ही करना चाहिए। दूसरी चीज मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिसिन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। भाई मेडिसिन, आपके पास रेंज ऑफ मेडिसिन हैं, आप नहीं रुक पाओगे, है ना, आप प्रिस्क्राइब करोगे, ठीक है, लोग बाग सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है, बट मदर टिंचर्स कोई पेटेंट्स भी रखता है प्रोडक्ट्स, कोई मतलब डाइल्यूशंस ही रख रहा है ना। तो बट आपके पास रेंज ऑफ मेडिसिन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ 30 पोटेंसी अवेलेबल है, आपके पास सिर्फ 200 है अवेलेबल। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हर केस में, किस केस में कब आपको किस पोटेंसी की जरूरत है, आपके हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। आप हम्म युद्ध करने जा रहे हो, आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो, आपके पास हथियार नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उस युद्ध का कोई सेंस है। हाँ आपके पास आपका हथियार आपकी मेडिसिन है, और वो इतनी होनी चाहिए आपके पास कि भाई हाँ, अब मैं इनसे कर सकता हूँ बढ़िया प्रैक्टिस। तो हम्म एक वो बेसिक चीज है कि भाई दवाइयाँ आपके पास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज वही है कि आपके पास जो बेसिक चीजें हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, और शुगर मॉनिटर करने के लिए, है ना, पल्स ऑक्सीमीटर की भी जरूरत पड़ती है, बट इतना जरूरत नहीं पड़ती होम्योपैथ को पल्स ऑक्सीमीटर की, बट ठीक है, वो भी रख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेइंग मशीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये बेसिक कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लिनिक पे होनी चाहिए। हाइट चार्ट होना चाहिए, बच्चे की हाइट की चार्ट, है ना, क्योंकि अभी होम्योपैथी सबसे ज्यादा फेमस तो ओल्ड एज में है, या फिर बच्चों में है, या फिर आप मान लो क्रोनिक इश्यूज में है ना। हम्म तो आपको वो चीज ध्यान देनी चाहिए कि उन लोगों के लिए आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं। दूसरा एक चीज और मैं बोलता हूँ कि भाई व्हील चेयर एक्सेसिबल होना चाहिए। कई सारे हम्म पेशेंट मेरे पास आते हैं जो व्हील चेयर पे आते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे क्लिनिक है तो प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को, ठीक है। तो वो एक चीज है, क्योंकि इसको भी काफी लोगों ने फेस किया है, जिन लोगों ने बाद में ये चीज देखी है कि अरे यार हमने ऊपर वाले फ्लोर पे ले लिया, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। तो ये चीज है। बाकी चैम्बर्स सेपरेट होने चाहिए, डॉक्टर का चैम्बर अलग होना चाहिए, डिस्पेंसरी एक बेसिक सेटअप होना चाहिए, और एक जो आपने स्टाफ रख रखा है उसके लिए एक अलग वो होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे शॉप का भी डायमेंशन, लोग बात पूछते हैं कि कितने मिनिमम में हो जाना चाहिए, हम्म तो मैं वो भी बोलता हूँ कि भाई मिनिमम जो डायमेंशन होना चाहिए वो शॉप का 10x10 तो होना चाहिए, ठीक हम्म है। 10x15 इज गुड, ठीक है, 10x20 इज वेरी गुड, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सिटिंग स्पेस दोगे, ठीक है। हम्म भाई मैं तो होम्योपैथ हूँ, मैं तो मैनिफेस्टेशंस में बिलीव रखता हूँ, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि मतलब शुरू से ही लगता था कि भाई मेरे को चाहिए कि मेरे पास 20 पेशेंट की तो हो बैठने की जगह, है ना। तो मैंने तो शुरू से ही रखा कि भाई 20 पेशेंट्स की बैठने की, क्योंकि मेरे मैं जगह दूंगा तभी आएगा इंसान, है ना। हाँ अगर मैं शुरू से ही सोच के चलूंगा कि नहीं यार अभी तो 2-3 से काम चल जाएगा, तो नहीं, मैं उस चीज में बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि हाँ सिटिंग स्पेस पेशेंट के बैठने के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। भले आप अपने स्टाफ को छोटी सी जगह दे दो, वो एकोमोडेट कर लेगा, क्योंकि आप उसको पे कर रहे हो। एट हम्म द एंड स्टाफ को अपनी सैलरी से मतलब, दैट्स इट। हम्म सो ये बेसिक चीजें हैं जो एक क्लिनिक पे होनी चाहिए। Now I wanted to ask audience ki anybody have question from sir, so they can ask in the chat box.
Meanwhile, I want to tell all of you joining over there and sir as well that we discussed in the afternoon as well that Bijan Pharmaceutical have their program. This is Bijan Buddy program where they are supporting the niche BHMS practitioners, मतलब freshers BHMS जो practice करना चाहते हैं और clinic setup में जैसे सर ने बताया कि मतलब जैसे सर ने बताया हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एक मनी का थोड़ा प्रॉब्लम लगता है और ये मेडिसिन की जो रेंज होनी चाहिए ये हर तरह की होनी चाहिए क्योंकि एक पेशेंट किसी भी तरह का आ रहा है हमारे सामने, हमारे पास कोई कमी नहीं होनी चाहिए दवाइयों की. तो बीजेन इज सपोर्टिंग द फ्रेश बीएचएमएस पास आउट स्टूडेंट्स विद ऑल ऑफ दिस, प्रोवाइडिंग money detail money it can be varied from 1,50,000 up to 3 lakh as per the students demands, and providing all the basic medicines with discount of 60% and above. Also providing stethoscope, BP apparatus, weighing scale, and all the amenities like this for a basic clinical setup. Arey, this is very nice. So, do you guys take any interest rate on this loan or what? The interest rate is very minimal for the students. Like it is 1 or 2% hardly for the following practitioners. Okay, 1 or 2% annually, right? Yeah, yeah, And you divide this amount in EMIs. yeah, yeah. This is very nice. This is a good initiative, I guess. हाँ मतलब this is the first pharmaceutical company I have heard कि मतलब they are not only dealing with the medicines but also investing in the future homeopathy as well. That's good. That's good. 1.25 लाख रुपए is a decent amount. 1.25 लाख हाँ, रुपए में खुल जाता है something clinic. to start something it is a good amount. It is a good amount. Exactly. It's a good amount. This So is very nice. So please DM all the details related to this scheme, right? sure, sir, sure, and I to will all the share to my audience as juniors. well. हाँ, I to will all share to my juniors. for sure, sir. Okay, as we are already sort of time, sir had a very busy schedule and now going for another busy schedule after this. So I wanted to thank you, sir. Thank you for this enriching session. Matlab, this topic need a very discussion, and from a knowledgeable physician and a practitioner like you, this is actually very helpful for all the students joined over there. So thank you so much, sir, from Bijan Pharmaceutical and all the students watching you. Thank you for this collaboration. Good evening. Okay, you're welcome. Good night.